names. I am writing here spellings. You all will learn at home, and in your notebook you have to write it. So this is the picture of a mango. In the previous page I told you, and the spelling of mango is M A N G and O. This is the spelling of mango. It's very simple. Firstly you have to write M, then A, then N, then G, and at last you have to write O here. So this is the spelling of mango. Let's move to our next picture, that is an apple. So the spelling of apple, I hope you all know, that is A double P L and E. So this is the spelling of apple. So let me tell you what is the color of apple, that is red. So our next picture is of pear. So pear starts from which letter, that is P. So firstly you will write here P. P is written like this, and then P, E, A, and then R. So this is the spelling of pear. And the color of pear is green, that is light green. So our next picture is of banana. So what is the spelling of banana? That is B A N A N A. So this is the spelling of banana. I repeat it once, that is B A N A N A. This is banana. And our last picture is of cherry. So from which letter cherry starts, that is C. So firstly we will write here C, then H, then E, and then R. R is written here once more, and then Y. So this is the spelling of cherry. Do you know of which color cherry is? Cherry is of red color. So what you all have to do, that note these all spellings in your notebook, learn it at home, and color the pictures, and enjoy your holidays also. So for today this much. Meet you in the next video. Thank you kids. Bye bye. Hello everyone, welcome to the online classes. This video is for class LKG. आज की वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जितनी भी वीडियोस थी उसमें भी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक केवल ए से के तक के स्पेलिंग्स को लिखना सीखा है। आज की वीडियो में हम लोग आगे के कुछ वर्ड्स को लिखना सीखेंगे, जैसे उनमें हमारा पहला है L, then M, then N, and at last that is O. So let's start. L for lotus, and the spelling of lotus is L O T U and S. So this is the spelling of lotus. I repeat it once, that is L O T U and S. So this is the spelling of lotus. You all have to color the given pictures. And the next alphabet is M. So what is for M? M for mango. So the spelling of mango is M A N G and O. This is the spelling of mango. You all know that mango is our national fruit, and it is also known as the king of fruits. And what is the color of mango? That is yellow. So move on to our next alphabet, that is N. So N for net, and the spelling of net is N E and T. This is the spelling of net. You all have to learn all the spellings with the particular letters. So our next alphabet is O. What is the spelling of O? That is O for orange, and the spelling of orange is O
R-A-N-G and E. So this is the spelling of orange. Orange is also a fruit, and here mango is also a fruit. So you all have to note this all in your notebooks and also learn at home. So let's move to our next question, that is identify these fruits and write their names. So you all have to do what? Just see the pictures and identify whether which fruit are these, and you all have. Hello everyone, welcome to the online classes. This video is for class LKG. आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम लोग स्वर वर्णों के बारे में जानेंगे। पिछली जितनी भी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने अ से लेकर बड़ा की मात्रा से जो शब्द बनते हैं उनको लिखना सीखा था, और आज की वीडियो में हम लोग री, ए और ए से जो शब्द होते हैं उनको लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। री से क्या होता है? री से होता है ऋषि। तो ऋषि हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे री इस तरीके से और फिर सी। तो इसमें अब हम लोग कौन सा स लगाएंगे? तो जो मूर्धन्य से होता है उसको पहले बनाएंगे, और सी, तो सी में किसकी मात्रा आ रही है? ई की। लेकिन अब कौन सी ई की? छोटी या बड़ी? तो ऋषि में छोटी की मात्रा होती है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे री सी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले बनाएंगे री इस तरीके से जो यहाँ पर भी दिया हुआ है, फिर लिखेंगे स, मूर्धन्य स को लिखेंगे और फिर उसमें छोटी की मात्रा इस तरीके से लगा देंगे। लिखने से पहले आप लोगों को मात्रा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो री से हो गया ऋषि। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो अक्षर है वो है ए। तो ए से क्या होता है? ए से एड़ी। तो अब एड़ी कैसे लिखते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले बनाएंगे ए इस तरीके से, ये हो गया हमारा ए। और डी, तो डी के लिए हम लोग ऐसे डमरू ड बनाएंगे और उसके नीचे एक बिंदी दे देंगे, डमरू ड बना के बिंदी। और फिर उसमें इसमें डी, यानी इसमें भी ई की मात्रा आ रही है। लेकिन अब इसमें कौन सी ई की आ रही है? छोटी या बड़ी? तो देखते हैं हम लोग। इसमें आ रही है हमारी बड़ी की मात्रा, जो कि इस तरीके से होती है। तो ये हो गया बड़ी। तो ये टोटल मिला के हो गया हमारा एडी। तो एडी को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। पहले लिखेंगे ए ऐसे, और फिर ड बनाएंगे अड़ा, और फिर उसमें ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा एडी। तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अक्षर है वो है ए। तो अब ए को कैसे हम लोग लिखते हैं? पहले लिखेंगे ए इस तरीके से, और ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है ऐनक। तो ए न, फिर क्या आ रहा है? न हमारा आ रहा है। तो फिर बनाएंगे न से नल, ए न क, हम लोग क से कबूतर। तो ये हो गया हमारा ऐनक। पहले ए बनाएंगे इस तरीके से, फिर न बनाएंगे और फिर क बनाएंगे। ये हो गया हमारा ऐनक। आपके होमवर्क में जितने भी पिक्चर दी गई हैं उन सभी को कलर भी करना है और सब चीज़ को याद भी करना है। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। री से क्या होता है बच्चों? री से होता है ऋषि, जो कि हम लोग पहले री लिखते हैं, फिर मूर्धन्य से लिखते हैं, फिर उसमें छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है ऋषि। फिर ए से क्या होता है? ए से होता है एड़ी। तो अब एड़ी के लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले बनाएंगे ए और फिर अड़ा बना के उसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एड़ी। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए। तो ए से क्या होता है? आप सभी लोग को पता होगा, ए से होता है ऐनक। तो ऐनक को लिखते हैं हम लोग कैसे? उसके लिए पहले हम लोग बनाएंगे ए, फिर लिखेंगे न और फिर क। तो ये हो जाएगा हमारा ऐनक। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पहले और बाद में आने वाले वर्णों को लिखिए।
तो बीच में जो वर्ण दिए गए हैं इनके पहले और बाद में जो भी वर्ण आते हैं उनको हम लोगों को लिखना है। तो ये क्या है हमारा, ये है री, और री के पहले क्या आता है, तो इसके लिए हम लोग को अ पढ़ना पड़ेगा। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। तो री किसके बाद आया हमारा, री आया है बड़ा ऊ के बाद। तो पहले वाले डब्बे में हम लोग लिख देंगे बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री, और फिर ए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है हमारा ओ, तो ओ से पहले क्या आता है या फिर ओ किसके बाद आता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ए के बाद से शुरू करते हैं। ए ओ, तो ओ किसके बाद आया है, ए के बाद। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए ओ। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा। तो अब हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड में है हमारा छोटी, तो छोटी किस पर से आता है, अ, आ, छोटी। तो छोटी आया है आ के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आ छोटी, आ छोटी, और फिर हमारा आता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग, तो अंग से पहले क्या आता है या फिर अंग किस अक्षर के बाद आता है, तो इसके लिए भी हम लोग को अ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर पढ़ते हैं हम लोग अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, अंग। तो हमारा अंग आ गया। तो अंग जो है ओ के बाद आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ। और फिर क्या है हमारा ओ, अंग और अ। तो ये हो गया हमारा पूरा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करना है और आपको सारा अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और सबको याद भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय किड्स। Hello everyone, welcome to the online classes. This video is for class LKG and today we will learn about number lines. आज की वीडियो में हम लोग नंबर लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले की वीडियो में पोजीशंस के बारे में पढ़ा होगा, तो आज उसी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ इस काइट के अंदर है 4, ये है 3, 1, 2 और 5, और ये जो है हमारा नंबर लाइन है। तो इस पे जो नंबर है ऑरेंज वे में दिए हुए हैं, जैसे 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो उसी तरीके से हम लोग काइट्स को भी अरेंज करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है। तो इसमें हम लोग को 0 को छोड़ देना है। तो 0 के बाद वाले नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 0 के बाद है हमारा 1, तो अब 1 किस काइट के अंदर लिखा हुआ है, 1 जो है थर्ड वाले काइट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लाके मैच कर देंगे। फिर है हमारा नंबर 2, तो नंबर 2 किस काइट के अंदर लिखा हुआ है, वो है इसमें। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ पे एरो जैसा बना देंगे। फिर हमारा है नंबर 3, तो इसको भी उसी तरीके से यहाँ पे लाके मैच करेंगे। फिर है नंबर 4, तो नंबर 4 को भी ऐसे लाके यहाँ पे मैच कर देंगे। आप लोग मैच करने के लिए पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। फिर हमारा नंबर 5, तो नंबर 5 भी सामने है हमारा, तो इसको हम लोग इस तरीके से बस ज्वाइन कर देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वाइन ईच बलून टू इट्स पोजीशन। ये सारे जो बलून्स हैं इनके अंदर एक एक नंबर लिखे हुए हैं, तो इन सभी बलून्स को भी काइट की तरह नंबर लाइन से ज्वाइन करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट बलून में हमारा 10, फिर है 9, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और नंबर में है हमारा पहले 0 है, तो 0 को तो हम लोग को छोड़ देना है। फिर है 6, तो 6 किस बलून के अंदर है, 6 वाला बलून ये है, तो इसको हम लोग लाके यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर है हमारा 7, तो 7 यहाँ है, इसको भी इधर मैच करेंगे। फिर है 8, इसको भी इस तरीके से मैच करेंगे। फिर 9, और उसी तरीके से सारे बलून्स को उनकी जगह पे लाके ज्वाइन कर देंगे। तो
इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ज्वाइन इज सन टू इट्स पोजीशन, जितने भी सन है उनको उनके पोजीशन से ज्वाइन करना है, यानी उनको उनके पोजीशन से मिलाना है। तो हमारा जो फर्स्ट सन के अंदर है वो है 14, फिर 11, फिर 15, फिर 12 एंड फिर 13। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है जो कि नंबर लाइन पे है वो है 0। 0 को तो हम लोगों को छोड़ देना है, तो 0 को हम लोग स्किप करेंगे। और फिर है हमारा 11। तो 11 किस सन के अंदर है, यहाँ पर। तो इसको लाके इस तरीके से यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया हमारा 11। फिर है हमारा 12। तो 12 हमारा किस सन के अंदर है, इधर है हमारा 12, तो इसको भी मैच करेंगे। फिर 13 इस तरीके से, फिर 14 को भी मैच कर देंगे हम लोग। और फिर लास्ट हमारा है 15, तो इसको भी इस तरीके से हम लोग मैच कर देंगे। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको मज़ा भी आया वो इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने पेंसिल बनाया है, तो पेंसिल के अंदर हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो हम यहाँ पे जैसे 4 लिख देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 6, उस यहाँ पे हम लोग 7 लिख देते हैं, 9, 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में है हमारा 4, और 4 के पहले वाले बॉक्स को भी फिल करना है, उसके बाद वाले को भी फिल करना है। फिर हमारा 6, इसके भी बाद 2 बॉक्सेस है उसको भी फिल करना है। तो 4 के पहले क्या आता है उसके लिए हम लोग को काउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 के पहले क्या है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीटेड। फिर सेकंड है हमारा, यहाँ पे 7 है और 7 के आगे 2 बॉक्सेस है। तो हम लोग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इसको इजी करने के लिए आप लोग यहाँ पे काउंटिंग भी लिख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको वैसे करके बताया भी था। फिर है थर्ड क्वेश्चन में हमारा पहले है 10। तो 10 के बाद क्या आता है, 11, देन 12, देन 13 एंड देन 14। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीटेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स को कैसे करते हैं, आप लोग नर्सरी में ये सीख चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग रिवीजन के रूप में करेंगे। तो 1, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1? And the spelling of 1 is O N and E. I hope you all have learned it, so you can do it easily. So the spelling of 1 is O N and E. Our next number is 2. So what is the spelling of 2? The spelling of 2 is T W and O. Our next number is 3. So spelling of 3 is T H R and double E. Now after 3 comes 4. So the spelling of 4 is F O U and R. Our next number is 5. So the spelling of 5 is F I V and E. इसी तरीके से आप लोगों को 10 तक नंबर नेम भी लिखना है, उनकी स्पेलिंग को भी लर्न करनी है और उसको अपने नोटबुक में भी लिखना है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू किड्स, बाय बाय।